in the previous lecture we had done the derivation of IS curve and how the IS curve moves, the slope of IS curve. We are going to dwell a little more into the mechanics of IS curve, and then we will today also do the origins of LM curve. If you remember, both IS and LM are basically going to give us the equilibrium of goods and the money market combined, and the combination of two will also give us what is also called as the aggregate demand curve. And based on these two curves, you will have an entire theory of liquidity preference, which will be coming in the next chapter. We will talk about the monetary and fiscal policies in the next chapter. So this chapter essentially is the building block for the entire monetary and fiscal policy analysis that we have to do in the next chapter. Okay, chalo. So let's just quickly see what we had done. What we had done was that we had talked about that in this chapter we had talked about that we introduced the concept of interest rates, and interest rates being a function, being determining this interest rates is determining investment, and investment basically determines AD. Therefore, now in the conceptualization of AD, you will now have interest rate as a factor. Now, but we haven't seen how interest rates are determined. अभी तक हमने सिर्फ interest rate ये बोला कि interest rate determine कर रहा है. How interest rate is determined we have not known. How is it determined? ये आज हम देखेंगे. आज probably we will see money market, but in the next class we will see how interest rate as a combination of money market and basically your goods market is determined. And once we know that how this is determined, अभी मान लो कि हमने ये assume कर लिया कि कहीं से determine हो रही है, ठीक है. So once interest rates are determined, we know that it basically guides investment. And वो कैसे guide करता है? We saw the investment function as I bar minus small bi. If you remember, this small b is the interest sensitivity, of investment. Interest sensitivity of investment कि बॉस अगर इंटरेस्ट रेट 1% से चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज होगा. और इसका हमने डायग्राम देखा था कि अगर हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ इंटरेस्ट रेट है, तो ये जो है, ये जो बी आई जिसकी स्लोप है, बी इसका स्लोप बी है, तो अगर बी ज़्यादा होगा तो ये ऐसा होगा, और अगर बी कम होगा तो वो ऐसा होगा. ठीक है, अगर बी बहुत ज़्यादा होगा और अगर बी बहुत ज़्यादा कम होगा तो. ठीक है. So yes, Garima, the lecture is being recorded. So this is how the investment function works, and then we incorporated this investment function into the AD function, and we found out that our AD function now looks like AD is equal to your C bar plus your I bar plus your G bar plus your NX bar, okay, plus your C minus your CT bar plus your small c into TR or all of that, which essentially you call as A bar, plus you have the other factors. Now what are these other factors? You have 1 minus C, 1 minus G, C into 1 minus G into Y minus BI. These are the other two factors which we have now introduced. ये कहाँ से आया? ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन से आया, और ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं है वहाँ से आया. ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो दैट AD इज इक्वल टू Y.
तो जब हमने ए डी इज इक्वल टू वाई पुट करा, व्हेन वी इक्वेटेड दिस इंटायर थिंग इज इक्वल टू वाई, तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई, सारी टर्म्स को हम एक साथ ले गए, तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू ए बार माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ये हमारे पास इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई एस कर्व। ये एक इक्वेशन है आई एस कर्व की। इसी को हम लिखते हैं एक और तरीके से, y इज इक्वल टू अल्फा जी, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन गाइज, दिस एक्सप्रेशन 1 अपॉन अगर इसको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू अल्फा जी विच इज द मल्टीप्लायर into a bar minus bi. So this is how you write the IS curve. Guys, you have to remember these terminologies. You will be bombarded with a lot of questions in your finals on these aspects. Okay, I had shown you previously that at least 45 to 50 marks will directly be from these chapters, in terms of numerical, in terms of explanation. So you cannot avoid all of these numerical aspects of the course. Okay, so this is what we know. And in the last part, in the fag end, what we had also seen is that if we know that y is equal to alpha g a bar minus bi, then what we need to do is, अगर हम इसको is के terms में लिखना चाहते हैं, क्योंकि if you remember is curve का अगर हम डायग्राम बनाएं, IS कर्व का अगर हम डायग्राम बनाएं, तो IS कर्व का डायग्राम कैसे बनेगा? इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व IS, ठीक है, एंड यू हैव I and Y, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम इसका स्लोप देखना चाहते हैं, तो वो I ये जो होना चाहिए वो dy by dx के टर्म्स में होना चाहिए। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। एक्सिस की बात कर रहा हूँ गाइज, डू नॉट कंफ्यूज दिस, एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो whenever you have to see the slope, it is this, ठीक है, और dy by dx इस तरीके से स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके से स्लोप देखना है तो हमें i को इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो जब आप i को इस तरफ लेके जाओगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाओगे, you will get I is equal to a bar minus bi minus y upon alpha g into b, ठीक है, which shows that the slope is what will be the slope, di by dy, or you can write this as, अगर नॉन मैथ से हो, you can write this as delta I by delta y is nothing but minus alpha g upon b. This minus sign is basically telling you that this curve is downward sloping. So if you want to write the absolute slope, मॉडुलस में slope, इसको मॉडुलस बोलते हैं, slope लिखना है तो it will be alpha g into b, ठीक है। Now we know the slope as well, ठीक है, and we also know that how to mathematically derive it, how to derive it in the normal sense of it. Basically इसका derivation का है कैसे आया था, if you remember, let's just quickly go through the derivation part diagrammatically. तो diagrammatically हमने क्या किया था, हमारे पास यहाँ था AD और हमारे पास यहाँ था Y, और ये हमारी थी 45 डिग्री लाइन, ठीक है, और हमने क्या किया था, हमने बेसिकली चेंज कर दिया था अपना I, if you remember this was AD की इक्वेशन कहाँ गई, a bar minus bi. So if you see this, हमने देखा कि अगर हम b चेंज कर देंगे, हमने I चेंज कर दिया था बस, I सिर्फ I चेंज कर दिया था कि I हमारा इंक्रीज कर गया। तो इस ये AD की इक्वेशन में जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, AD की इक्वेशन में इंटरसेप्ट इज दिस, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्ट में हमने ये I चेंज किया तो हमारा इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे पहुंच गया, क्योंकि हमारा ये जो कर्व है वो कितने से मूव किया,
वो मूव किया चेंज इन आई इंटू बी से, ठीक है, इतने से हमारा एक कर्व मूव कर गया ऊपर, ये इंटरसेप्ट चेंज हुआ है आपका, और उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, एंड वी सॉ दैट उस आपका आई एंड वाई के स्पेस में देखो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है एंड आपका वाई साइमल्टेनियसली इंक्रीज हुआ है. तो दिस शोज दैट आई एस इज बेसिकली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड वो लॉजिकल भी है. जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. इसको लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैथमेटिकली चलो ठीक है, डायग्रामेटिकली, कि बॉस अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मेरा एडी बढ़ेगा तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा. सिंपल. तो इस तरीके से आपका IS कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग, वी सॉ दैट इफ I डिक्रीजेस Y इंक्रीजेस, और इनके अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया आपका. ठीक है, दिस एसेंशियली गिव्स यू द डाउनवर्ड स्लोपिंग थिंग. Now we have to see, guys, the slope. The slope of IS curve is extremely important because slope पे डिपेंड करेगा कि आपका इम्पैक्ट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या होगा. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपको IS का स्लोप याद रहे हमेशा और LM का स्लोप याद रहे. सो रिमेंबर दिस गाइज, द स्लोप अब आपको याद रखना है कि स्लोप जो है अल्फा जी इंटू बी है, 1/alpha g into b. दैट मीन्स अब अगर मेरा अल्फा जी बढ़ता है या बी बढ़ता है तो उसकी वजह से मेरा जो स्लोप होगा वो फ्लैटर हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ लॉजिक. ठीक है, इसको लॉजिक के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम मैथ्स के ऊपर भी जाएंगे. नाउ अगर मान लो आपका इंटरेस्ट रेट जो है हमें पता है कि हमारा जो स्लोप है वो 1/alpha/g है. ठीक है, ना सपोज आपका मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. इंटरेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो व्हाट डज इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा, उसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा मतलब हुआ कि बी जो है वो बहुत ज़्यादा है. बी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? बी बहुत ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि मेरा अगर ये इन्वेस्टमेंट है और ये इंटरेस्ट रेट है तो बी कम होगा तो मेरी लाइन ऐसी होगी, और अगर बी ज़्यादा होगा तो मेरी लाइन ऐसी होगी. दिस इज़ बी मोर एंड दिस इज बी लेस. ठीक है, क्यों? हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं? हम इसके अंदर बात कर रहे हैं कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इतने से डिक्रीज किया, I1 से I2 पे गया तो क्या होगा? अगर B कम होगा तो मेरी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी कम है. इंटरेस्ट सेंसिटिविटी कम का मतलब क्या हुआ? कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम से इंक्रीज हुई. बट रिमेंबर कि सेंसिटिविटी क्या है कि अगर थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. तो इसमें क्या हुआ? अगर मेरी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? थोड़ा सा चेंज किया आपने और उसकी वजह से देखो इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा चेंज आ गया. इन दोनों को कंपेयर करो. ठीक है, सो विच बेसिकली शोज कि अगर बी ज़्यादा होगा तो मेरी हल्का सा इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट होगा कि मेरा जो एडी है वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाएगा. एडी बहुत ज़्यादा से अगर इंक्रीज कर जाएगा तो मेरा वाई बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाएगा. तो दैट मीन्स मेरा जो IS कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा. अगर ये ऐसा था पहले तो वो ऐसा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर investments and sensitivity of B. Now let us also see this in terms of say अगर मेरा अल्फा जी चेंज होता है तो क्या होगा. ठीक है, अल्फा जी का इम्पैक्ट देखते हैं. रोल ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, रोल ऑफ मल्टीप्लायर देखो अब क्या हुआ यहाँ पर.
यहाँ पर सपोज हमारे पास दो मल्टीप्लायर्स हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है गाइस? एक टी पे डिपेंड करती है और एक डिपेंड करती है सी पे। ठीक है, मल्टीप्लायर अगेन रिमेंबर गाइस, मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी। दैट मीन्स मल्टीप्लायर दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सी पे और टी पे। नाउ कैन समवन टेल मी कि सी अगर ज़्यादा हुआ तो मल्टीप्लायर क्या होगा? If C increases, then what happens to multiplier, and if T increases, what happens to multiplier? क्या होगा बताओ? Multiplier increases. Okay, Nikita, Tanisha, both says multiplier increases. धारणा great. तो इसका लॉजिक क्या है? हमने लास्ट लेक्चर उसमें अपना रीडिंग्स में भी देखा था, लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि अगर हमारा C इंक्रीज होता है तो दैट मीन्स आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो मतलब ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। दैट मीन्स नेक्स्ट राउंड का जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स लीकेज कहीं नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो कमा रहे हैं वो एकदम से कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करोगे तो और डिमांड कर रहे हो। तो और मैथमेटिकली भी हमें पता है कि देखो ये डिनोमिनेटर में है, बट डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ है। तो अगर सी बढ़ रहा है तो मेरा मल्टीप्लायर इंक्रीज करेगा। टी बढ़ रहा है तो क्या होगा? इट विल डिक्रीज, क्योंकि दैट मीन्स गवर्नमेंट ने आपकी इनकम कम कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। तो अगर गवर्नमेंट ने आपकी इनकम कम कर दी टैक्स बढ़ा के, तो दैट मीन्स आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाओगे। ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाओगे तो दैट मीन्स मार्केट में डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो आउटपुट भी कम ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ पता है। तो मान लो पहले हमारे पास ये वाला था, ये सी के साथ है। देखो ये दोनों सी के साथ हैं। और मान लो फिर उसके बाद हमने एक केस लिया वेयर सी डैश इज मोर देन सी, मल्टीप्लायर इंक्रीज हो गया। तो जब मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा तो जब मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो आपका सी डैश के साथ जो वैल्यू आ रही है, ये आपकी एडी कर्व जो है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ टिल्ट हो जाएगा। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? ये पोर्शन क्या है? दिस इज ए बार माइनस BI1। ठीक है, इस पर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट इंटरसेप्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट स्लोप पे जो है, एडी के स्लोप पे देखो, एडी का जो स्लोप है वो अब और ज़्यादा स्टीप हो गया है। ठीक है, तो अब उसकी वजह से और ये देखो ये दूसरा एडी का वो है। और ये हमारा ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है कि जब आप कहते हो ए बार माइनस B1 2। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ किया है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है तो अगर मैं पुराने वाले मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट देखूं तो मेरा कितना होता है आउटपुट? मेरा आउटपुट y1 से इस पॉइंट से मेरा आउटपुट इस पॉइंट तक जाता है। ठीक है, ये मेरा इनिशियल था, इसको E1 और ये E2 था। तो यहाँ से मेरा आउटपुट यहाँ तक जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड मल्टीप्लायर। बट इफ आई सी सेम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बट अगर मल्टीप्लायर ज़्यादा हो तो क्या होगा? मेरा पहले तो वैल्यू आएगी E1 डैश, मैं E1 डैश पे था, वेयर आई वाज ऑन Y1 डैश। और सेम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट की वजह से अब मेरा जो आउटपुट है वो E2, मेरा इक्विलिब्रियम E2 डैश पे मिल रहा है, वेयर द आउटपुट इज Y2 डैश। तो देखो यहाँ से यहाँ पर जो इंक्रीज आ रहा है, ये जो इंक्रीज आ रहा है, दिस इज इन न्यू मल्टीप्लायर। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से आपने देखा कि सेम इंटरेस्ट रेट चेंज की वजह से इंटरेस्ट रेट तो दोनों में I1 से ड्रॉप होके I2 पे क्या है, बट एक में आउटपुट जो है वो Y1 से Y2 पे गया है और एक में Y1 डैश से Y2 डैश पे गया है, which is a much larger change. This is larger change. तो यही हम नीचे देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट इतने से गया है, बट व्हेन वी कंपेयर with the multiplier which is smaller multiplier, we see that the output increases from Y1 to Y2, whereas where the multiplier YG is large, our impact is from Y1 to Y2. तो ये आपकी कर्व जो है ये फ्लैट हो गई है, आपका कर्व हैज नाउ बिकम फ्लैट। ठीक है, सो दिस बेसिकली शोज कि अगर हमारा मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा होगा
तो हमारा आउटपुट तो हमारा जो IIS कर्व वो फ्लैट होगा. सो इन अ सेंस वी नाउ नो दैट इफ अल्फा जी एंड या और B is high, if either of them is high, then my IS will be flat. ठीक है. And opposite, if alpha G or B is low, then my IS will be steep. ठीक है. समझ में आया गाइस? ये स्लोप समझ में आए इनके, और स्लोप के साथ लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक लॉजिक मैं इसका तो मैं लॉजिक देख चुका हूँ, इसका भी लॉजिक दे देता हूँ कि बॉस अगर मेरा अल्फ़ा जी हाई होने का क्या मतलब है कि अगर मेरा चेंज इन ए बार जो होगा अगर होगा इंक्रीज़ होगा, तो अल्फ़ा जी हायर का मतलब कि वाई जो है वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगा. यही तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है. ठीक है. तो मल्टीप्लायर अगर बहुत ज़्यादा से अगर y जो है वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स कि वो कर्व जो है वो फ्लैटर होना चाहिए ज़्यादा इंक्रीज दिखाने के लिए. लेट्स मूव ऑन टू दी, ये हमने सब कुछ लिया. लेट्स मूव ऑन टू दी हाँ शिफ्ट को देखते हैं. देखो, पोजीशन ऑफ IS. नाउ इफ यू वांट टू सी द पोजीशन ऑफ IS कर्व, व्हाट वी नीड टू सी is, so if you want to see the position of IS curve, we know that I is equal to A bar by B minus y upon alpha GB. तो आप जब भी आप पोजीशन देखना चाहते हैं ना, मेरा हमेशा तरीका होता था कि मैं इंटरसेप्ट देख लेता था कि इंटरसेप्ट क्या है. और इंटरसेप्ट कैसे देख सकते हो इसका, ये इंटरसेप्ट कहाँ पर होगा, जब y विल बी इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो, आपके पास I की वो आ गई A बार माइनस B. B हमें पता है कि स्लोप का इम्पैक्ट है, दैट मीन्स हर चीज़ मैटर करेगी A बार में. A बार इज़ वेरी क्रूशियल टू योर इंटरसेप्ट. अगर A बार इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मीन्स माई इंटरसेप्ट विल बी ऑफ IS विल बी A बार अपॉन B. ये जो है ये तो स्लोप को भी इम्पैक्ट करता है. ठीक है. तो इसको मूव करने का मतलब कि इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा है और स्लोप भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं. ये जो फैक्टर है ये बेसिकली हमारा डिटरमिन कर रहा है कि वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ IS. ठीक है. ये पोजीशन ऑफ IS को डिटरमिन कर रहा है. अगर इफ A बार इंक्रीजेज ऑटोनॉमस लेवल ऑफ, और A बार क्यों इंक्रीज करता है कि या तो ऑटोनॉमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाए, या ऑटोनॉमस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज कर जाए, या ऑटोनॉमस लेवल ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर जाए. ठीक है. बट मेजरली हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ बात कर चुके हैं और ये तो हमारे फॉरेन सेक्टर में अंदर आएगा. तो अगर मेरी ऑटोनॉमस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो मेरा A बार बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से मेरा जो IS कर्व है, what will happen is my IS curve will shift like this, IS dash. ठीक है. and this is what we will right now do. let's see how. अगर मेरा ऑटोनॉमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं, वो अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, मेरा ये वाला कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लेवल, ये एक्चुअली इन्होंने गलत लिखा है. दिस वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज इक्वल टू A बार माइनस BI. ठीक है. BI 1 ले लो अभी तो इसको. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स इफ योर A बार इंक्रीजेस, इफ योर A बार इंक्रीजेस देन दिस विल मूव फ्रॉम A बार टू A बार डैश. तो ये जो मूवमेंट हुआ वो क्या हुआ, चेंज इन A बार माइनस BI, सेम लेवल 1, I में कोई चेंज नहीं आया. तो मेरा ये चेंज हो गया, एंड उसकी वजह से आई नो कि हमारा अगर A बार चेंज होता है तो हमारा इनकम कितने से चेंज होता है. वी ऑलरेडी नो दैट, ये तो हमारे मल्टीप्लायर से ही हमें पता चल गया था that if my A bar, what will be the change in Y if there is a change in A bar. We already know that this is equal to alpha G. ठीक है. where now we can say Y is equal to A bar, change in A bar into alpha G.
ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करके हमने देखा है कि ये क्या कितना इंक्रीज होगा। वो यहाँ लिखा हुआ है कि बॉस हमारा आउटपुट जो है, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E1 से E2 मूव कर जाएगा। बट रिमेंबर गाइज, यहाँ पर आपका सेम इंटरेस्ट रेट पे इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम एंड आउटपुट इंक्रीज हो गया, यही हुआ ना। सेम इंटरेस्ट रेट पे इनकम एंड आउटपुट हैज इंक्रीज फ्रॉम y1 to y2. So how will you draw this in terms of a diagram? In terms of a diagram, when you bring it up, just a second, please. Yeah. So when you bring it up, you will see at same level I1, we saw that from y1 to y2 our output has increased, और change हमें पता है कि change इतने से होगा. So therefore we see a shift in IS, and the magnitude of shift is this. Please remember the magnitude of shift as well. ठीक है, magnitude of shift इतना होगा. ठीक है, तो ये शिफ्ट जो होता है वो यूजुअली ऑटोनॉमस इंक्रीज इन स्पेंडिंग की वजह से होता है. देन ट्रांसफर पेमेंट से भी हो सकता है. तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे हो सकता है. ट्रांसफर पेमेंट्स की वजह से भी शिफ्ट हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से भी हो सकता है. किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है. नाउ What I want you to work at home, सिर्फ मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि टैक्स इंक्रीज करने की वजह से मल्टीप्लायर में क्या चेंज होगा. फ्रॉम योर एंटायर क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स, ओनली वन स्टूडेंट हैड व्हाट्सएप मी दी सोल्यूशन. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर किसने किया था, बट ओनली वन स्टूडेंट हैड टर्न्ड इट ऑन. So what I want you to do is that what happens if the tax rate increases. If the tax rate increases, what happens to the slope? Derive that. If tax rate increases, what happens to the slope of IS curve? ठीक है, ये आपको खुद घर पे करना है. And if you are able to do it, you're more than welcome to send it to me. Now let's guys talk about the money market. हमारा IS market, हमारा goods market clear हो गया पूरा का पूरा. Now we have to enter the money market. और यहाँ पर सिचुएशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेट होनी शुरू होगी इन दिस चैप्टर एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि फिर उसके बाद अब हम अभी सिर्फ मनी को मनी की तरह देखेंगे, फिर मनी को एज एन एसेट देखेंगे, कंपेयरिंग इट विद अदर पॉसिबल एसेट्स. ठीक है, सो जब हम ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड योर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मनी मार्केट जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट, and because it's complex market, that's why they are regarded as one of the best jobs in the market. So money market traders जो होते हैं या फिर people जो RBI से associated होते हैं, they are very well taken in the market, and if you have an experience, say if you have an experience with RBI for 6-7 years, then you can easily enter the corporate sector with a very high paying job, क्योंकि आपका ये टेक्निकल मैटर्स में आपको अच्छी तरीके से पता होती है चीज़ें. ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस LM कर्व, और ये LM कर्व डिराइव कैसे होता है. एज आई टोल्ड यू, IS कर्व को IS कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व होता है, और इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कैसे मिलके गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज IS. LM कर्व इसलिए हम LM कर्व बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं और डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो फंक्शन है डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस, अभी मैं बताऊंगा डिमांड फॉर व्हाट इज डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस, उस फंक्शन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, बेसिकली मनी की डिमांड फॉर मनी को, जो डिमांड फॉर मनी का जो फंक्शन है, व्हेन आई से डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस, यू कैन अंडरस्टैंड demand for real balances, you can understand this as demand for money. ठीक है, उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को हम M से
रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज गिवन थ्रू फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. ठीक है. So that's why the nomenclature came up in the Hicksian framework, which is called as the LM curve. Now, just as IS curve was combinations of I and Y, for which goods market was in equilibrium, LM curve is basically depicting those combinations of interest rates and level of output such that the money supply is equal to money demand. तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज गुड्स, ये मनी मार्केट वो है जहाँ पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जब जितना पैसा लोग मांग रहे हैं और जितना मार्केट में पैसा अवेलेबल है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो आपकी मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है. एंड साइमल्टेनियसली ये किस रेट पे होंगे, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट और इनकम पे डिपेंड करेंगी ये दोनों चीज़ें. अब हम देखते हैं वो इंटरेस्ट रेट और इनकम पे कैसे डिपेंड करेगी. इसको समझने के लिए हम दो स्टेप्स में अपना प्रोसीजर बांटेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन दैट हाउ इज मनी डिमांड डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट एंड इनकम. आप और मैं पैसा मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पॉकेट में पैसा चाहिए होता है कि अच्छा यार पॉकेट में कितना पैसा रखना है. ठीक है, दैट इज बेसिकली माई मनी डिमांड, कि मैं अपने पॉकेट में कितना पैसा रखना चाहता हूँ. ठीक है, अभी बहुत सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ गाइस कि पॉकेट में कितना पैसा रखना चाहता हूँ, बाद में इसमें हम एसेट्स भी ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि ये आपका वॉलेट है, ठीक है, ये आपका वॉलेट है, से अच्छा सा वॉलेट ले लो, डॉल्चे एंड गबाना. ठीक है, लो अब या लुई विटॉन ले लो. ठीक है, सो आपका ये वॉलेट है, आप अपने वॉलेट में कितना पैसा रखना चाहते हो, कितना पैसा रखना चाहते हो. डॉलर इसलिए रख रहा हूँ, डॉलर का साइन इसलिए बनाया क्योंकि गांधी जी को इंडिया के बाहर कोई नहीं मानता. आर्स इज नॉट अ हार्ड करेंसी, आर्स इज अ सॉफ्ट करेंसी. सो बेसिकली हार्ड करेंसीज are those currencies which are acceptable across the world. So you take your US dollar, you take your pound, you take your euro, or you take say yen, or your yuan. So all of these countries, all of these currencies are easily convertible currencies. You can take them in any country, and they are readily available for basically people will readily take it. So for example, whenever you go abroad, if any of you has gone abroad, you can simply take your dollars and pay whatever amount at whatever shop in dollars. Everyone accepts it. So that's why you keep dollars in your pocket whenever you're going abroad. Okay. So now my question is that how much money will you keep in your wallet? What determines that? आप अपने पॉकेट में कितने पैसे लेके घूमते हो, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. आप अपने पास जब घर से निकलते हो, कॉलेज आते हो या कहीं भी जाते हो, कितने पैसे रखोगे अपने पास पॉकेट में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. ऑन एन एवरेज, नॉट एन एक्सेप्शनल डे के बर्थडे है तो ट्रीट देनी है. प्राइस ऑफ गुड्स, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड खुशी. प्राइस ऑफ गुड्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. ठीक है, and I'm happy that you were able to come up with this. But apart from that guys, आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपके पास कितने पैसे होंगे. अगर मान लो मंथ की शुरुआत है, ठीक है, मंथ की शुरुआत में आपको इमीडिएटली पॉकेट मनी मिली है, तो आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसे होंगे कि नहीं होंगे. जब आप कॉलेज जा रहे हो तो आप राजा की तरह जीते हो. अभी कॉलेज तो आपने खैर शुरू नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, सो क्या बोले इसमें. बट यूजुअली if I talk to the third years, तो they would probably understand this. या स्कूल का समझ लो ना यार, कि अगर आपके पास पॉकेट मनी मिलती थी तो अगर मंथ का शुरुआत है तो बड़े आलीशान तरीके से कैंटीन में बैठ के सब कुछ खाया जा सकता था. ठीक है, और मंथ के एंड पे है तो टिफ़िन से, घर का जो टिफ़िन आता था उसी से काम चलाना पड़ता था.
तो बेसिकली आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं वो डिपेंड ऑन योर इनकम, वुडंट इट? एक रिक्शा वाले की पॉकेट में कितनी लिक्विडिटी होगी वर्सेस से कॉर्पोरेट हॉन्चो जो लाख रुपए दिन कमा रहा है या जैसे 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसकी पॉकेट में ऑल्दो कार्ड होगा बट कैश भी काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ रिक्शा वाला. वुडंट दैट बी ट्रू गाइस? So essentially income becomes a very important factor on how much money will you keep in your pocket. Tell me another factor which will be very important, and think in terms of opportunity cost. कि सपोज मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं तो मैं क्या 4 लाख रुपए अपनी पॉकेट में लेके घूमूंगा? इंटरेस्ट, एग्जैक्टली अनिका, इंटरेस्ट. नॉट इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट बट इन जनरल इंटरेस्ट. इन्वेस्टमेंट की यहाँ हम बात नहीं कर रहे अनिका, इन्वेस्टमेंट बिजनेस कम्युनिटी करती है, ठीक है? अभी हम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ऑल्दो कंज्यूमर्स भी करते हैं बट ठीक है, मतलब आई गेट योर पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. बट और वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है या कहीं और इन्वेस्टमेंट हो सकता है. सो अगर मेरे पास 5 लाख रुपए महीना आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं 5 लाख रुपए अपनी पॉकेट में रखूंगा. ये 5 लाख रुपए अगर मैंने पॉकेट में रख लिया तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मैं इसको बैंक में रख सकता था और मुझे इंटरेस्ट रेट मिल सकता था. तो दैट मीन्स अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मैं पॉकेट में कैश कम रखूंगा कि ज्यादा रखूंगा? ऑफ कोर्स बैंक में ज्यादा रखूंगा मैं पैसे. मैं कहूंगा कि यार मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, मुझे तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मुझे तो उसमें इनकम हो रही है. सो नाउ यू नो दैट मेरे जो डिमांड फॉर मनी होगा वो will be positively related to income but will be negatively related to my interest rates. ठीक है? So this is how, so demand for money is positively related to income and demand for money demand will be इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स. ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड द थर्ड पॉइंट which was actually pointed out by someone, Khushi had pointed out. Apart from that there's a very important factor, कितना पैसा मैं रखूंगा ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि प्राइस लेवल क्या है. क्योंकि मैं जो खरीदने जाता हूं उसका एक प्राइस है. अगर मार्केट में प्राइस चीजों का बढ़ रहा है तो मुझे अपनी पॉकेट में जो मनी है वो भी बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि अगर मान लो पहले एक फ्रूटी जो थी वो 10 रुपए की आती थी, आज वो फ्रूटी 20 रुपए की आती है, तो अगर मुझे फ्रूटी खरीदनी है तो मुझे पॉकेट में पैसे ज्यादा रखने पड़ रहे हैं. So people are interested in real money balances कि कितना खरीद सकता हूँ. लोग नॉमिनल मनी बैलेंसेस के बारे में नहीं बात करना चाहते. बॉस मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं उससे खरीद कितना पाऊंगा. I'll give you another example. जब आप कॉलेज आओगे, ठीक है, तो जब आप कॉलेज बाई चांस आप अगले साल जब कॉलेज आओगे, इस साल तो आने का कोई उम्मीद मत रखना, तो बाई चांस जब आप अगले साल कॉलेज आओगे तो आप उतरोगे एक स्टेशन पे विच इज कॉल्ड एज मेट्रो स्टेशन विच इज कॉल्ड एज ग्रीन पार्क. तो ग्रीन पार्क से जो ऑटो है, उस ऑटो वाला वो जो ऑटो है वो ऑटो वाला कितने पैसे ले रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा कि आप पॉकेट में कितने पैसे रखो. ठीक है? अगर वो ऑटो वाले सबने कहा कि यार हम 10 रुपए की जगह 20 रुपए लेंगे, यूजुअली 10 रुपए पर पर्सन लेते हैं और 4-5 लोगों को बिठा लेते हैं वो टिल गार्गी कॉलेज. ठीक है? अब उसने कहा कि नहीं बॉस मैं 20 रुपए लूंगा, तो दैट मीन्स आपको अपने घर से पैसे ज्यादा लेके चलने पड़ रहे हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा हो गया उस कमोडिटी. सो पीपल while demand for money, while making a demand for money is actually making a demand for the demand for money is actually a demand for real money balances. What real money balances is basically how much will I able to buy. Will I be able to buy? That is a very important factor. ठीक है? And if the prices increase, so if can you see this?
if the prices doubles up, the individual has to hold twice the nominal balances in order to buy the same amount of goods. So basically, you are interested in, when you talk about money demand, you are interested in not the nominal balance in your pocket, you are interested in the real balance, really आप कितना खरीद सकते हो, ठीक है. So that is called as demand for real balances. That is called as demand for real balances. And we already now know through our discussion that it is positively related to your income, and K is called as, क्या बोलोगे K को guys? Can someone guess what will be K? What will be the name of K? Okay, ठीक है. I was looking for something technical. जैसे हमने interest sensitivity of investment की बात करी थी. Exactly, sensitivity of demand for money for or income sensitivity of demand for money. K will be called as income sensitivity. यहाँ कहीं लिखा होगा, ये देखो K लिखा है ना, K and H, sensitivity for demand for real balances with respect to level of income and interest rate. So this is income sensitivity of money demand, and this is interest sensitivity of money demand or real balances. Okay, so do remember these two technical terms, K and H. So we write down our demand for real balances L as KY minus HI. Okay, where K and H are both greater than 0. In a sense, you can also say, I think one of you just pointed out, in a sense, you can also say that if K increases, then I basically say of my income, I will hold a larger amount of money in my pocket. ठीक है, तो you would see, चलो, let us see old people versus young people. Let me test you guys. ओल्ड लोगों का के ज्यादा होगा कि यंग लोगों का के ज्यादा होगा? हुज के विल बी मोर, ओल्ड वर्सेस यंग? किसका के ज्यादा होगा हर्षिता? क्यों? नहीं, इन्वेस्टमेंट का बात नहीं है यहाँ पर, अभी सिर्फ मनी डिमांड के बारे में बात हो रही है. इनकम के एज एन इनकम फैक्टर. इंटरेस्ट के बारे में, जब हम एच के बारे में बात करेंगे तब इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेंगे. बट यू आर राइट, बट आई वांट अ बेटर एक्सप्लेनेशन. सोचो गाइस, चलो लेट मी स्पिल द बीन्स. ना गाइस, जितने ओल्ड लोग होते हैं, योर प्रॉब्ली योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी इनकम का ज़्यादा अमाउंट कैश के फॉर्म में अपने पास रखते हैं, ठीक है. बट जो यंगर जनरेशन है उनको पता है कि हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास कार्ड्स हैं. इमीडिएटली वी नो दैट आवर डेबिट कार्ड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मनी इटसेल्फ. तो हमें पता है कि वी कैन कीप दैट अमाउंट इन आवर बैंक्स, और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्वीप इन एफडी. मैं एफडी के फॉर्म में भी रख सकता हूँ, जैसे मुझे चाहिए होगा वो इमीडिएटली लिक्विडेट हो जाएगी. तो इसीलिए हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि कम अमाउंट अपने पॉकेट में रखें. and older people who are not so technical or tech friendly will keep a larger amount of cash. And I'm talking from experience. So someone like my father always, he always keeps something around 3,000, 5,000 rupees in his pocket. Whereas I am more satisfied even with 500-700 rupees in my pocket, because I know the debit card that I have is representative of everything. Or I also have a credit card which is equally representative of any money that I want. And it's on a matter of 1 minute that I can withdraw money. So that is how you can probably understand this as well. Now the other aspect is HI. Now if H is very high, then what will happen? नहीं हर्षिता, इंटरेस्ट तो आई से पता चलता है, ये सेंसिटिविटी है. वाई से इनकम पता चल रही है, आई से इंटरेस्ट रेट पता चल रहा है, ये सेंसिटिविटी है.
सो दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज सेंसिटिविटी. तो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टू इंटरेस्ट रेट्स, कि हल्का सा आप इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ आप मनी डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा कर लेते हो. सो हल्का सा इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो आपने कहा कि बॉस मैं पैसा बिल्कुल नहीं रखने वाला अपने पास. ठीक है. तो कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार अरे यार इंटरेस्ट रेट ना एफडी का या एफडी का इंटरेस्ट रेट 5 से 5.5% हो गया. तो आप क्या कहोगे कि नहीं यार मैं कैश रखना ही नहीं चाहता, मैं अपना बाकी सारे बैलेंसेस जो हैं वो कम करना चाहता हूँ, पॉकेट में कैश कम रखना चाहता हूँ, मैं सारे का सारा अपना बैंक में रखूँगा. दैट इज कॉल्ड पीपल विद हाई इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी. ठीक है. एंड जिनका लो होगा वो बेसिकली कहेंगे यार इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं है, मेरे पॉकेट में कैश पड़ा हुआ है. ठीक है. कई लोग आपने देखा होगा कई बिजनेस फैमिलीज में या फिर आपने अपनी फैमिलीज में भी देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं वॉलेट नहीं रखते हैं. ठीक है. वो लोग नोट को मोड़ के रखते हैं इस तरीके से. देखिए कई लोगों को ऐसे गड्डी सी बना के रखते हैं. आई एम ऑलवेज एनवियस ऑफ दीज पीपल बिकॉज मन मेरा भी करता है, बट प्रॉब्ली द अपब्रिंगिंग इज नॉट दैट इन द बिजनेस कम्युनिटी. ठीक है. तो बट कई बार देखने में अच्छा लगता है, कई लोग एकदम से पॉकेट से पूरी ऐसी गड्डी निकाल के लेते हैं. तो ऑल ऑफ दीज गाइज यू वुड सी इनका इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार बॉस मार्केट में क्या इंटरेस्ट चल रहा है. उनको चाहिए कि भैया पॉकेट गर्म रहनी चाहिए. ठीक है. पॉकेट में गड्डी होनी चाहिए. ठीक है. तो वो बेसिकली कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर. नाउ लेट अस सी दी डिमांड फॉर मनी. और अब हम ये जो डिमांड फॉर मनी है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. वी नो हमारा डिमांड फॉर मनी और इसके बीच में इंटरेस्ट रेट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो हम डिमांड फॉर मनी जो है हम ज़्यादा करेंगे, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम डिमांड फॉर मनी कम करेंगे. ठीक है. ये हमें इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है. सो दिस इज हाउ माई डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एल. एंड इफ यू सी व्हाट हैपन्स, इसका वो क्या होगा, इसका बेसिकली हम कह रहे हैं कि if my income increases from y1 to y2 तो क्या होगा, हमारा डिमांड फॉर मनी एकदम से बढ़ जाएगा. और कितने से बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज बाय k इंटू चेंज इन इनकम. हमें ये तो पता है ना, L इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई. तो अगर मेरी इनकम जो है वो इतने से बढ़ गई तो मेरी डिमांड फॉर मनी कितने से बढ़ेगा, चेंज इन डिमांड फॉर मनी विल बी k इंटू चेंज इन दिस. और उतने से हम दिखा रहे हैं, उतने से मेरी डिमांड फॉर मनी चेंज हो रही है. ये देखो L1 से L2 हो गया. ठीक है. और अभी इंटरेस्ट रेट तो सेम है, सेम इंटरेस्ट रेट पे हम दिखा रहे हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी द अदर एस्पेक्ट. डिमांड फॉर मनी देख लिया, अब सप्लाई साइड हमने देख लिया. अब सप्लाई साइड कौन करता है मनी का, सप्लाई साइड ऑफ मनी इज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. इन आवर केस इट विल बी द आरबीआई से आता है यहाँ पर, क्योंकि यूएस की किताब है इसलिए यहाँ पर फेडरल रिजर्व लिखा है जिसको बोलते हैं दी फेड. नाउ द डिमांड फॉर मनी, ठीक है, द सप्लाई ऑफ मनी इज द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी. द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी इज बेसिकली एम्बॉर. ठीक है. फिक्स्ड है मनी सप्लाई, उन्होंने फिक्स कर रखा है. अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारे सारे मॉडल के अंदर कि मनी सप्लाई फिक्स्ड है. बट इफ यू रिमेंबर, हम जो है वी आर कंसर्न्ड विद द रियल मनी सप्लाई, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद नॉमिनल मनी सप्लाई. क्यों? क्योंकि हमारे डिमांड साइड पे भी हमने किस चीज के बारे में बात करी है, हमने डिमांड साइड पे भी बात करी है रियल मनी बैलेंसेस की. रियल मनी बैलेंसेस की बात करिए तो सप्लाई साइड में भी तो हम रियल मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे. तो ये नॉमिनल मनी सप्लाई है. रियल मनी सप्लाई के लिए क्या करोगे, रियल मनी सप्लाई के लिए उसको प्राइसेस से डिवाइड कर दोगे. एंड प्राइसेस भी गाइज अभी हम लेके चल रहे हैं कि कांस्टेंट है. कैन समवन आंसर कि अभी हम किनीजियन सिस्टम में प्राइसेस कांस्टेंट क्यों लेके चल रहे हैं? बताओ गाइज, प्राइस कांस्टेंट कैसे लिया है मैंने यहाँ पर? इट हैज टू डू विद द अर्ली किनीजियंस. हमने ऑलरेडी बात करी हुई है. नहीं, कांस्टेंट है खुशी, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं,
कांस्टेंट क्यों है? अभी हमने कांस्टेंट लेके चल रहे हैं गाइस। रिमेंबर ये डिप्रेशन के टाइम पे इकोनॉमिक्स की थ्योरी आई है ये वाली। प्राइसेस जो है हमारा जो एएस कर्व है वो ऐसा है और एडी कर्व ऐसा है, तो प्राइसेस तो कांस्टेंट ही चल रहे हैं ना। हम डिप्रेशन के टाइम पे ये थ्योरी दी गई है, डिप्रेशन के टाइम पे जब ये थ्योरी दी गई हुई है तो क्या प्राइसेस होंगे? प्राइसेस तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं। मार्केट में सप्लाई खूब सारी पड़ी हुई है, डिमांड करने वाला ही कोई नहीं है, तो मार्केट में प्राइस तो बढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो प्राइसेस आर कांस्टेंट। डू रिमेंबर दिस थिंग गाइस, किसने कब थ्योरी दी है और किस पर्सपेक्टिव से थ्योरी दी है, ठीक है। ये आपको ये लॉजिक कहीं पे अब आपको किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको 3 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी समझने के लिए कि अच्छा ये थ्योरी किस तरीके से मूव ऑन करी इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो प्राइसेस आर कांस्टेंट, ठीक है, प्राइसेस आर कांस्टेंट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइस लेवल हम यहाँ लेके चल रहे हैं, बट लेटर ऑन दिस प्राइस लेवल मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास रियल मनी डिमांड आ गई, रियल मनी सप्लाई आ गया। जब रियल मनी डिमांड आ गई, रियल मनी सप्लाई आ गया, तो हमारे पास L इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई एंड मनी सप्लाई इज इक्वल टू दिस। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं यहाँ। सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम बाय पी। दिस गाइज इज द इक्वेशन ऑफ LM कर्व। LM कर्व की बेसिक इक्वेशन है, बट इसको लिखने के लिए हम again we will you can formulate in terms of I, ठीक है। इसको फिर से आप I के टर्म्स में फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है, और I के टर्म्स में जब आप फॉर्मुलेट करोगे तो क्या आएगा? दिस विल बी के वाई माइनस एम बाई पी बार एंड बाई एच बाई एच, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई ऑफ LM कर्व। डू रिमेंबर दिस इज द LM कर्व की इक्वेशन। प्लीज नोट इट डाउन एट द एंड ऑफ द कॉपीज, जैसे मैंने बाकी सारी चीजें बोली थी। नाउ कैन समवन टू टेल मी द स्लोप ऑफ LM कर्व? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ LM कर्व गाइस? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ LM कर्व? I और Y के बीच में है ना, मैं अभी कराऊंगा, बट यहाँ से देख के आप बता सकते हो स्लोप। I और Y के बीच में ही तो होगा LM कर्व। डी आई बाई डी वाई क्या होगा गाइस? K by H, एग्जैक्टली K by H. So this will be the slope of K by H will be the slope of LM curve. Now let's see all of this. ठीक है ना, इसका पहले डेरिवेशन देखते हैं, ठीक। पहले इसका डेरिवेशन देखना है। देखो आप अपनी रीडिंग्स देखोगे ना, तो रीडिंग में उल्टा सीधा पेज बना हुआ है, मैंने उसको सीधा कर दिया है, ठीक है। सो इफ़ यू सी गाइज, हमारा यहाँ पर गाइज ऑलवेज रिमेंबर टू राइट डाउन द करेक्ट थिंग इन योर एक्सेसेस, ठीक है। यहाँ पर रियल बैलेंसेस हैं, क्यों? क्योंकि रियल बैलेंसेस इसलिए हैं क्योंकि मनी डिमांड भी रियल टर्म्स में और मनी सप्लाई भी रियल टर्म्स में, ठीक है। और हमें पता है कि our मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। ये हमें पता मनी सप्लाई कांस्टेंट है, ये मनी सप्लाई है जो RBI ने दिया है, ये मनी डिमांड है। नाउ व्हाट वी डू इज, जैसे हमने पिछले केस में किया था, हमने क्या किया, हमने y को इंक्रीज कर दिया, y को y1 से y2 पे ले गए, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये हमें पता है राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज ये मान लो ये यहाँ से इसको एक्सटेंड करो, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, ठीक है। तो वी नो दैट दिस विल बी, व्हाट विल दिस बी, दिस इज k इंटू चेंज इन y। इतने से y इंक्रीज, इतने से मनी डिमांड इंक्रीज हो जानी चाहिए थी। बट गाइज वाई हैव वी मूव्ड फ्रॉम हेयर? तो ये डायग्राम को ना आप कंप्लीट खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इसको एक्सटेंड करके ऐसे करो, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपने y इंक्रीज किया, तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। तो हमारा अगर y इंक्रीज होगा तो मेरी मनी डिमांड कितने से इंक्रीज होगी? माई मनी डिमांड इंक्रीज विल बी इक्वल टू k इंटू चेंज इन y। तो दिस विल बी k इंटू
दिस विल बी k इंटू चेंज इन y। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना गाइज, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा। बट यहाँ से अब मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा कि यहाँ से हमारा मूवमेंट जो होगा वो यहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम का, हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो यू कैन पॉइंट आउट दिस एज E1 डैश टाइप ले सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ और यहाँ से फिर यहाँ मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये आपको रीडिंग्स में एक्सप्लेन नहीं है, मैं एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो अब क्या हुआ गाइज कि आपका आपकी इनकम, बेसिकली इनकम इंक्रीज हुई। इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपकी मनी डिमांड इंक्रीज हुई। कितने से इंक्रीज हुई मनी डिमांड? k इंटू चेंज इन y से इंक्रीज हुई। बट बॉस मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तो इस पॉइंट पे कैन यू टेल मी कि व्हाट इज हैपनिंग इन एट पॉइंट E1? एट पॉइंट E1 इज द मनी मार्केट इन इक्विलिब्रियम? इज द मनी मार्केट इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1? गाइस, क्या मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है E1 पॉइंट पे? इस पॉइंट पे हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या था? इनिशियल इक्विलिब्रियम था L इज इक्वल टू मनी सप्लाई। टायर्ड विद दिस, ओह नहीं गई, हाँ। सो इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या था? मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। बट क्या हुआ? बिकॉज Y इंक्रीज हुआ इसलिए मनी डिमांड इंक्रीज हो गई, बट मनी सप्लाई बॉस अभी भी पुराने लेवल पे ही है। So what has happened at E1? At E1, money demand is more than money supply. और सेंट्रल बैंक कह रहा है कि बॉस मैं मनी सप्लाई चेंज नहीं कर रहा मार्केट में। मार्केट में उतना ही पैसा है, बट हम सारे मिलके ज़्यादा पैसा मांगने लग गए हैं। तो मार्केट में पैसा मांगने वाले लोग ज़्यादा हो गए और मार्केट में पैसा कम रह गया है, मार्केट में पैसा इंक्रीज नहीं हुआ। तो क्या होगा गाइस उसकी वजह से? किसी भी चीज़ में, किसी भी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं बढ़ती तो क्या होता है गाइस? शॉर्टेज। नहीं, सिर्फ शॉर्टेज नहीं, उसकी वजह से क्या होगा? शॉर्टेज तो हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? अरे क्राइसिस, इन्फ्लेशन या प्राइस इंक्रीज। किसी भी चीज़ में कहीं पे भी डिमांड इंक्रीज करेगी और सप्लाई नहीं होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा उस चीज़ का। तो हम क्या होगा इस केस में? प्राइस ऑफ मनी क्या है? इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ होल्डिंग मनी? इंटरेस्ट रेट। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा इंटरेस्ट रेट। तो दैट मीन्स अब ये चीज़ बढ़नी शुरू होगी और जब ये चीज़ बढ़ेगी तो आपका एल गिरेगा ना। अब आई इंक्रीज होना शुरू होगा और आई तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक ये मनी डिमांड को वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे ना ले जाए। सो थिंक इन टर्म्स ऑफ टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आपका मनी डिमांड वाज मोर देन मनी सप्लाई, बिकॉज इतने से आपका मनी डिमांड इंक्रीज हो गया। But in the next step, what has happened is to gain the equilibrium back, money demand has to fall now, so that it becomes equal to money supply. And how will it fall? It will fall by such an extent that it will fall by H into change in I. And this H into change in I has to be equivalent to K इंटू चेंज इन वाई, सो दैट वापस इक्विलिब्रियम सेम लेवल पे पहुंच जाए। तो ये आपका मनी डिमांड को इंक्रीज कर रहा था और ये आपके मनी डिमांड को कम कर रहा है, नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो ये अब वर्क करेगा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज में, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो आपकी मनी डिमांड कम होती जाएगी और आप अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंच जाओगे। एट दिस पॉइंट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट योर y इज हायर but your I is also higher. So there is a positive relationship between interest and income which is being displayed by LM curve, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे E1 और E2 पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है। तो Y और I1 पे जो इक्विलिब्रियम आया E1 एंड Y2 एंड I2 पे जो इक्विलिब्रियम आया वो हो गया E2। इन दोनों को ज्वाइन करोगे आपका LM कर्व हो गया विच इज अ पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व। एंड this essentially shows that
बॉस अगर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है, दो तरीके से समझना है पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि अगर मैं इनकम इंक्रीज करूंगा तो मेरी मनी डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर मनी डिमांड इंक्रीज होगी तो वापस, और मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई तो उसको री इक्विलिब्रेट करने के लिए मुझे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप। या फिर उल्टा समझ सकते हो कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मेरी मनी डिमांड कम होगी, और मनी डिमांड वापस बढ़ाने के लिए मुझे इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी लोगों की, सो दैट वापस इक्विलिब्रियम, मनी डिमांड का इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई की इक्वल हो जाए। So this is how there is a positive relationship between I and Y, which gives you an LM curve. And all across this LM curve, if you see, money market is in equilibrium. All across these points, यहाँ पर आप lines draw करते रहो, आपके पास new points आते रहेंगे. All of these points are those points where your money market is in equilibrium. So an alternative definition of LM curve is locus of points where money market is in equilibrium. Let's see this. ये हमने देखा guys, ये देखो, ये हमने इक्वेशन निकाल ली थी अभी हमने काम किया, एंड यही हमने एक्सप्लेनेशन, ये पूरी एक्सप्लेनेशन यहीं पे गिवन है, ठीक है। देखो, हायर इनकम लेवल causes demand for balances to increase at each level of interest rate, so money demand curve shifts right to L2. The interest rate has to increase to I2 to maintain the equilibrium in the money market at higher income levels. जब इनकम लेवल हाई हो गया तो आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, so that वापस मार्केट में इक्विलिब्रियम हो जाए, क्योंकि at higher income levels what has happened is it has thrown the market out of equilibrium. To re-equilibrate, जब इनकम इंक्रीज हुई तो मनी डिमांड हैज grown more than मनी सप्लाई, टू री इक्विलिब्रेटेड योर इंटरेस्ट रेट्स हैव टू। तो ये हमारा एलएम कर्व का कॉम्बिन वो हो गया, शेड्यूल हो गया, ठीक है। स्लोप ऑफ एलएम कर्व, नाउ द स्लोप ऑफ एलएम कर्व इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स. द स्लोप ऑफ एलएम कर्व इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स विच इज के एंड एच. यूजली एच का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एज कंपेयर टू के, बट वो हम बाद में समझेंगे. बट इन जनरल you can see that if k increases and h decreases, then slope will become extremely high. अगर k increase करता है और h decrease करता है, the slope of LM will go towards infinity. Slope क्या है? K by H है. K by H है. If K increases and H decreases, the slope is going towards infinity, which means कि आपका LM curve ऐसा हो जाएगा. And if your K decreases and H increases, your LM will move towards 0, where your LM curve will look something like this. इसको हम बाद में जाके लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन भी बोलेंगे, ठीक है। यूजुअली मैं आपको यूजुअल सेंस बताता हूँ. यूजुअली हम एच के सेंस में देखते हैं कि एच जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम आ जाएंगे एलएम कर्व बीइंग कंप्लीटली फ्लैट हॉरिजॉन्टल. इसको हम बाद में लिक्विडिटी ट्रैप बोलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, याद रखना. और जब इंटरेस्ट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो आप एलएम कर्व आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है यूजुअली पर, बट मैं आपको वैसे बता दूं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एलएम कर्व को ऐसा लेके चलते हैं. और जो अर्ली कीनीशियंस वाली जो थ्योरी है, जो जहाँ पर कीन्स ने थ्योरी दी थी, वो लिक्विडिटी ट्रैप की थ्योरी थी. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा समझेंगे कि ये क्या है. तो यही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि सपोज लेट्स सी, इफ द डिमांड फॉर मनी इज़ वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, दैट मीन्स एच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, देन एलएम कर्व इज क्लोज टू हॉरिजॉन्टल. In that case, a small change in interest rate must be accompanied by a very large change in income in order to re-equilibrate the market.
इसका मतलब क्या हुआ गाइस, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट थोड़ा से भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, तो उसको रीइक्लिब्रेट करने के लिए y1 से y2 लेके जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप LM, इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो रहा है, मनी डिमांड की इक्वेशन देखो, KY माइनस HI। आपका ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हल्का सा आपने चेंज किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, आपका बॉस मनी डिमांड बहुत तेज़ी से गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया आपका मनी डिमांड। दैट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा मनी डिमांड गिर गया तो अब वाई को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट ये वापस मनी डिमांड को खींच के अपने लेवल पे लेके आ पाए। ठीक है, सो दीज वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड देयरफॉर if your sensitivity of interest rate is extremely high, the work that Y has to do to re-equilibrate the market has to be very much, very huge. Therefore ये Y बहुत ज़्यादा होगा for small changes in I. Therefore it will be a flat curve, and the opposite will be the case when it's a steep curve, when your edge is very less, and you can pretty much imagine कि अगर एच कम होगा तो दैट मीन्स कि आपको ये जो होगा, आपको बहुत कम इंक्रीज इन वाई करने की ज़रूरत है फॉर रीइक्विलिब्रियम। तो उस केस के अंदर आपका ऐसा कर्व बन जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंज इन इंटरेस्ट रेट भी कर लो तो भी इनकम में सिर्फ इतना सा ही चेंज करने की ज़रूरत है और वापस इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ योर LM। The last thing that we need to cover for today's class is the position of LM curve. The position of LM curve, जैसे हमने IS के बारे में बात करी थी, the position of LM curve is dependent on the intercept. Let's see the intercept. हमारा कर्व क्या था? हमारा कर्व था I is equal to 1 by H KY minus M bar by P। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि बॉस अगर मेरा कहते हैं y 0 होगा तो इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया m by p बार इंटू 1 by h। और इसके अंदर h तो हमें पता है कि उस दूसरे चीज़ से भी एसोसिएटेड है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली इंटरसेप्ट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग m बार। तो अगर मेरा m बार इंक्रीज होगा तो मेरा LM कर्व राइट में शिफ्ट होगा, अगर m बार इंक्रीज होगा, और अगर मेरा m बार डिक्रीज होगा तो मेरा LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। देखो इसमें क्या हुआ, आपका मनी सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो जब मनी सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पॉइंट पे अब क्या हो गया, मनी सप्लाई तो यहाँ पहुँच गई, तो मनी सप्लाई इस पॉइंट पे क्या हो गया, मनी सप्लाई इज मोर देन मनी डिमांड। मनी डिमांड तो इस लेवल पे पहुंची हुई है ना, इस लेवल पे है मनी डिमांड, तो मनी सप्लाई इस लेवल पे पहुंच गई। तो अब आपकी मनी सप्लाई जो है अब ज़्यादा हो गई मनी डिमांड से, दैट मीन्स आपको मनी डिमांड को इंक्रीज करने की ज़रूरत है इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए। मनी डिमांड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जब आप y को इंक्रीज कर दो एट सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, या फिर आप I को इंक्रीज कर दो एट सेम लेवल ऑफ इनकम। दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक चीज़ को आप इंक्रीज करोगे। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे एट सेम लेवल ऑफ y LM कर्व हमने शिफ्ट नहीं किया, हमने मनी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करी, ये KY1 माइनस HI पे है। ठीक है, तो ये जो कर्व है, हमने ये देखा कि हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया। ठीक है, और जब हमने इंटरेस्ट रेट को गिराना था, तो जब हमने इंटरेस्ट रेट को गिराया तो क्या होगा, हमारा मनी डिमांड जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और जब हमारा मनी डिमांड इंक्रीज होगा तो हम वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे मनी डिमांड विल बी इक्वल टू मनी सप्लाई, क्योंकि हमने इस इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया है, बट y सेम रखा है। तो सेम y पे
हमने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, this is basically telling us that there will be a rightward shift in money supply. ठीक है, या फिर इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हो, मैं आपको दूसरा सेंस समझा रहा हूँ, बट नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाऊंगा. इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो कि आपने क्या किया, आपने मनी सप्लाई, आपने वाई जो है वो चेंज कर दिया, वाई जो है वो इंक्रीज कर दिया, बट इंटरेस्ट रेट जो है आपने सेम रखा. तो आप इसको इस सेंस में भी समझ सकते हो कि ये चेंज आया. ठीक है, दोनों में से कोई भी सेंस समझे. यूजुअली हम इस सेंस में हम इस सेंस में यूजुअली समझते हैं, इस सेंस में हम नहीं समझते हैं, बट ये सेंस थोड़ा बेटर समझ में आ जाता है. तो ये हमारा शिफ्ट इन LM कर्व है व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस. सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा मनी सप्लाई कर्व, तो ये LM कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, so these are the shifts in money supply, and next class में we will talk about the equilibrium in the goods market and the money market coming together. So I'll repeat the part of this shifts and how much the shift will be, and then we will move on to the equilibrium. We'll be finishing the chapter in the next class with the derivation of AD curve as well.